Welcome to the lecture series on engineering mathematics. I am Dr. Mohammad Mazharul Haq. We have started Laplace transform. हमने Laplace transform start किया था और already we have seen Laplace transform definition and some standard functions Laplace transform. So we'll continue that. But before that, let us revise those. So in today's lecture, आज हम क्या देखेंगे? Some more standard functions Laplace transform with the help of the definition. सो वी आर सीइंग व्हाट, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? स्टैंडर्ड फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन. सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी आर सीन with the help of this definition Laplace of f of t 0 to infinity integral e raised to minus st f of t dt f of s. You must be by heart this definition. Laplace of whenever we are taking any function, you must click in your mind that is nothing but the integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. जब भी Laplace of f कोई भी फंक्शन रहेगा आपके माइंड में क्लिक होना ज़रूरी है. दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रल, definite integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt, which is a function of s. This is a function of s, right? So with the help of this definition we has find out the Laplace of standard function 1 by s, Laplace of e raised to at as 1 by s minus a, Laplace of e raised to minus at as 1 by s plus a, Laplace of c raised to at as 1 by s minus a log c, Laplace of sin at as a upon s square plus a square, Laplace of cos at as s upon s square plus a square. ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने देखे हैं. इसको बार बार मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद आ जाए. राइट, याद हो गया ये? यू मस्ट बी रिमेंबर ऑल दिस स्टैंडर्ड लैप्लास. So we'll continue to find the Laplace transform of standard functions. Some more standard functions we'll see. Now today's standard function is sin hyperbolic at. So अभी previous lecture में हमने जो देखा था वो trigonometrical function, simple trigonometrical था. Now here we'll see sin hyperbolic at. This is a hyperbolic function and already you know why this is called hyperbolic. So this is a hyperbolic sine and hyperbolic cos. This h denotes sin hyperbolic. So just replace this in the definition of Laplace. Laplace f of t we know is integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. So in place of this f of t, just replace this hyperbolic function. Sin hyperbolic function will write in place of this f of t, in place of this f of t. But we don't know the standard value of this integral. E raised to minus st is one function and sin hyperbolic is another function. So we know only the standard value of integral in which trigonometric, यहाँ पे hyperbolic अगर नहीं रहता तो हम standard result यूज़ करते e raised to ax sin bx वाला जो हमने previous lecture में यूज़ किया. But here sin hyperbolic is there. So what we'll do is we'll use the value of this sin hyperbolic or the relation of this sin hyperbolic in terms of exponential. इसका sin hyperbolic का हम relation यूज़ करेंगे. You know that sin hyperbolic is nothing but e raised to theta. क्यों? e raised to theta minus e raised to minus theta upon 2. So in place of theta we have e raised to at. So we'll write this as e raised to at in place of theta minus e raised to minus at by 2. ये sin hyperbolic theta की वैल्यू है. e raised to theta यहाँ पे अगर थीटा की पोजीशन पे क्या है, यहाँ 80 है. So e raised to theta minus e raised to minus theta by 2. ये पूरी जो टर्म है ये साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल. अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं बाय द लॉ ऑफ इंडाइसेस. ये कांस्टेंट है 1/2, इसको बाहर ले लेंगे और इसको सेपरेट कर देंगे. e रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू ए टी इंटीग्रल 0 to infinity, और ये e रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू ए टी माइनस ए टी विद इन दिस इंटीग्रल 0 to infinity. वाई? बिकॉज वी नो दैट वी कैन सेपरेट दिस इंटीग्रेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन पे हम सेपरेट कर सकते हैं. तो जस्ट अप्लाई बाय द लॉ ऑफ इंडाइसेस टू दिस. बेसिस सेम है, ये पावर ऐड हो जाएगी. बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी. What we'll do is we'll write this exponential power in terms of minus because we know that e raised to minus infinity is 0. So we'll try to write. Just take a base as same and this and if you observe this, instead of calculating the integration, if you observe this is nothing but the definition of Laplace of e raised to at. e raised to minus st f of t. तो f of t की पोजीशन पे e raised to at है. तो ये हमारा टास्क बच गया, पूरे इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने का टास्क बच गया हमारा.
So no need to rewrite e raised to at e raised to minus st. So this is nothing but a definition. इसलिए मैं बता रहा था कि डेफिनेशन को याद रखना कितना ज़रूरी है. ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी की पोजीशन पे जो है वो उसका लैप्लास रहेगा. तो यहाँ पे ई रेस टू ए टी है. सो दिस इज द लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इज द लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन. और ये दोनों लैप्लास हमने जस्ट नाउ वी हैज फाइंड आउट. अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फाइंड आउट किए. ई रेस टू लैप्लास इज व्हाट 1 by s minus a and e raised to minus at is 1 by s plus a. So this is what 1 by s minus a minus 1 by s plus a. So we don't require this partial fraction, we require only one fraction, one value चाहिए हमको. So this is what 1 by 2, इसको हम solve करेंगे partial fraction को. 1 by s minus a minus 1 by s plus a, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. s plus a माइनस दिस माइनस s माइनस a, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. s प्लस a इंटू 1 माइनस s माइनस a इंटू 1 माइनस s माइनस माइनस प्लस. तो ये माइनस s और ये प्लस s कैंसिल हो जाएगा. एंड दिस a एंड दिस a 2 टाइम्स a एंड दिस s माइनस a इंटू s प्लस a. हमारे पास स्टैंडर्ड रूल है अलजेब्रा का. s माइनस a इंटू s प्लस a इज s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो दिस इज the value. So 2 will get cancelled, this 2a 2 get cancelled. Only the value we require what we got is a upon s square minus a square, right? Laplace of sine hyperbolic at is a upon s square minus a square. s is greater than mod a क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे दोनों में इसमें क्या है, s greater than a है, s greater than माइनस a, दोनों कंडीशंस है. अगर आपको दोनों कंडीशंस लिखना है दोनों कंडीशन लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली वन कंडीशन, s is greater than मॉडुलस ऑफ a. ठीक है. इसको हमने बीच में इंटरप्शन हो गया, वापस से रिवाइज करता हूँ मैं. क्या किया हमने? एफ ऑफ टी की पोजीशन पे साइन हाइपरबोलिक रखा और साइन हाइपरबोलिक का रिलेशन एक्सपोनेंशियल के साथ उसकी वैल्यू रखी ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा बाई 2. सो साइन हाइपरबोलिक वैल्यू रखने के बाद इसको सेपरेट करने के बाद हमको क्या मिला? दिस इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी, दिस इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी. इसके वैल्यूज है हमारे पास स्टैंडर्ड. अब जब भी इस टाइप के लैप्लास आएंगे हमारे पास जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किए तो उसको यूज़ करेंगे हम. सो 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस 1 बाय एस प्लस ए. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किए तो हमको मिला ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. राइट, गॉट दिस? ये समझ में आया? जस्ट ओवरलुक दिस. इफ एनी स्टेप यू डिडंट गॉट यू कैन आस्क मी. ओके. So we'll see the another standard function cos hyperbolic at. Similar function, same thing we'll do here. In the first, we'll try to find out with the help of definition Laplace of f of t within the integral e raised to minus infinity within the integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. यहाँ f of t की पोजीशन पे ये फंक्शन रख देंगे. So cos hyperbolic at in place of f of t. अब यहाँ पे रखने के बाद हमको क्या करना है? जस्ट इन द सेम वे वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विच इज इन्वॉल्विंग दिस प्रोडक्ट ई और कॉस हाइपरबोलिक. तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक का रिलेशन यूज़ करेंगे अभी जैसे हमने यूज़ किया था. सो द रिलेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा बाई 2. सो हियर इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव ए टी. सो ई रेस टू ए टी प्लस ई रेस टू माइनस ए टी बाई 2. अगेन सेम थिंग विल डू. वी नो दैट इंटीग्रेशन सेपरेट होता है एडिशन पे और सब्सट्रैक्शन पे. ये 2 बाहर ले लेंगे 1 बाई 2 और इसको एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ई रेस टू माइनस एस टी ई रेस टू ए टी ई रेस टू माइनस एस टी ई रेस टू ए टी प्लस ई रेस टू माइनस एस टी ई रेस टू माइनस ए टी. अब इसको वापस से ऑब्जर्व करेंगे. दिस इज नथिंग बट द सेम थिंग. लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन. सो लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी दिस इज ई रेस टू माइनस एस टी को छोड़ के जो भी रहेगा उसका इंटीग्रेशन लेकिन 0 टू इन्फिनिटी रहना ज़रूरी है. वो क्या हो जाएगा? लैप्लास. सो लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी. यहाँ पे एडिशन है तो दोनों के वैल्यूज पुटअप कर देंगे. 1 बाय एस माइनस ए 1 बाय एस प्लस ए, दोनों का स्टैंडर्ड वैल्यू है. अब इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. एस प्लस ए इंटू दिस 1 एस माइनस ए इंटू दिस एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हमारे पास स्टैंडर्ड रूल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ न्यूमरेटर में अब क्या कैंसिल होगा? ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. सो 2 टाइम्स एस बचेगा यहाँ पे.
So 2 times s upon s square minus a square. This 2 and this 2 will get cancel out. ये cancel हो जाएगा. So what we'll get is s upon s square minus a square. Provided s must be greater than modulus of a. ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे इन्वॉल्व है. s is greater than a, s is greater than minus a. दोनों कंडीशन लिखना है, दोनों लिख सकते हैं, या फिर शॉर्टकट में s is greater than modulus of a. So usually we are not writing these conditions, we are writing directly this value by considering this must be there. तो हमारे पास क्या मिला, वापस से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ. हमने क्या किए, एफ ऑफ टी की पोजीशन पे कॉस हाइपरबोलिक को रखा और कॉस हाइपरबोलिक का रिलेशन एक्सपोनेंशियल के साथ जो है वो इसको यूज़ किया और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया एडिशन पे. सेपरेट करने के बाद हमको मिला ये लैप्लास ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन ई रेस टू ए टी, ई रेस टू माइनस ए टी. दोनों वैल्यूज हमने लैप्लास के रख दिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिला, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. राइट. सो इन ब्रीफ आई राइट इन द टेबुलर फॉर्म व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट आर द लैप्लासेस. वन का क्या है, 1 बाय एस, ई रेस टू ए टी का 1 बाय एस माइनस ए, ई रेस टू माइनस ए टी का 1 अपॉन एस प्लस ए. दिस रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी देयर. साइन ए टी का ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस ए टी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक अभी देखा हमने, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, साइन और ये साइन दोनों में क्या डिफरेंस है. ए न्यूमरेटर में सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में साइन चेंज है. ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन के लिए यहाँ पे प्लस है और हाइपरबोलिक के लिए यहाँ पे माइनस है. तो एक ही चीज़ याद रखना है, साइन हाइपरबोलिक अगर आ गया तो डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा और अगर साइन डायरेक्ट आ गया तो डिनोमिनेटर में प्लस आएगा. एस स्क्वायर और ए स्क्वायर के टर्म सेम रहेंगे. सेम यहाँ पे कॉस के टर्म में एस आता है न्यूमरेटर में, यहाँ भी एस आया है और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, व्हाट, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. तो एक चीज़ याद रखो, हाइपरबोलिक में डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा, सिंपल है, और ये टर्म कॉमन रहेंगे. साइन के लिए ए आएगा न्यूमरेटर में, कॉस के लिए एस आएगा. ये ट्रिक्स है याद रखने के लिए. आपके अगर अपने कुछ यूजुअल खुद की ट्रिक्स हैं तो वो भी बना सकते हैं, बस याद रखना इंपॉर्टेंट है. ये लैप्लास स्टैंडर्ड हमको बार बार यूज़ होगी. राइट. सो दीज आर स्टैंडर्ड फंक्शंस. इसको यूज़ करके हमको क्या करना है, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो अब जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा, यू कैन नॉट एबल टू फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स वैल्यू. सो जस्ट कीप इन माइंड. सो now we has completed almost the Laplace transform and standard Laplace transforms of those functions. So अब इसके बेसिस पे हमको एग्जाम्पल देखना है.